Hello students, the next topic today will be going to discuss about the pressure. As we have already discussed about the effects of force on an object, that how the force plays a vital role in moving an object. But how do we find that how much effect the force will produce on the effect? कि एक कैसा effect जो है, how much effect the force will be produced on the object. And the effect that a force produces on a object, that depends on the different factors. What are those factors? First is the magnitude of the force applied, कितने मैग्नीट्यूड के साथ आपने फोर्स अप्लाई की है. और सेकंड फैक्टर है आपका एरिया ओवर विच द फोर्स इज़ अप्लाई, कितने एरिया में जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई की है हमने. यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी you have here they have given a relation between the effect of force and area of contact. Now this you can do in your houses also. This activity, you have to take two knives, one with sharp edge and other with blunt edge. Now try to cut vegetables with both the knives. What will you observe? That the sharp knife, you will find it easier to cut the vegetables with the sharp knife as compared to the blunt knife. Why? Now this will be discussing. From the above activity we conclude that the effect of force that depends on the area of contact of two objects. Area of contact, अब हमने अभी पढ़े हैं factors, magnitude of force applied and area over which the force is applied. So it depends upon the area of the knife that we are going to cut the vegetable. Means more is the effect of force and vice versa. That means for effect of force using pressure. Pressure is defined as force upon area of which force acts. Force upon area का मतलब है कि अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है तो एरिया जो है ऑब्जेक्ट का विच इज़ इन कॉन्टैक्ट शुड बी लेस. एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो क्या लगेगी, कम लगेगी. और अगर एरिया कम होगा तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी. दैट इज़ स्मॉलर द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, ग्रेटर इज़ द प्रेशर. एरिया और प्रेशर जो हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स जितना एरिया जो होगा वो स्मॉल होगा, प्रेशर जो है दैट विल बी अप्लाइड विल बी ग्रेटर. एंड जितना एरिया जो है ग्रेटर होगा, ठीक है, प्रेशर जो है वो क्या होगा, स्मॉल. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर रिलेशन. यू कैन से द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. दैट इज़ प्रेशर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. नाउ ऑन दिस you can see this is the SI unit of Pascal. It is represented by PA. Thus 1 Pascal is the pressure applied when force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. As 1 Newton is the example of is the 1 Newton is the SI unit of 1 Newton is the SI unit of force and meter square is the SI unit of area. So 1 Pascal will be equal to 1 Newton upon 1 meter square. So on this basis there are some numerical problems. If a girl applies a force of 12 Newton on an area of 10 centimeter square, what will be the pressure? अब आप यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है दैट इज़ 12 न्यूटन, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन 100 इंटू 100. तो दिस विल बिकम 0.0010 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर फोर्स हमने 12 न्यूटन है, एरिया हमने निकाल लिया है 0.0010 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर आ जाएगा आपका, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 12,000 पैस्कल. This numerical problems you have to do in your notebooks also. In the next numerical you can see you have to calculate the pressure exerted by a metallic block which applies a force of 3 Newton
when it is placed on sand, upright on base, and the dimensions are given. Length, breadth and height is of a metallic block 25 centimeter, height 10 centimeter and width is 5 centimeter. अब व्हेन मेटालिक ब्लॉक अपराइट पोजीशन में जब है तो एरिया क्या होगा? अपराइट मीन्स उस टाइम क्या आएगी उसकी? अपराइट का मतलब है कि इस तरह से हमने ब्लॉक को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आएगी? इसकी हाइट आएगी और आपकी विड्थ आएगी, दिस वन, ठीक है। हाइट और विड्थ हम लेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 10 × 5। इस तरह से हमारा अपराइट पोजीशन में ब्लॉक जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी और सिर्फ क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? एरिया 10 × 5, ठीक है। इसको हमने फिर सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 10/100, 5/100, ये हमारे पास कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारे पास है गिवन, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 पास्कल। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एंड ऑन इट्स बेस, मीन्स उसको हमने सीधा करके रख दिया है, ठीक है। तब हमारे पास क्या आएगा? उसका लेंथ होगी एंड इट्स हाइट 25 × 10। फिर उसको मीटर्स में हमने चेंज किया। देन वी अप्लाइड अ फॉर्मूला P = F/A, 3 न्यूटन अपॉन 0.025, हमारे पास आ जाएगा 120 पास्कल। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन एक्सर्ट्स, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? प्रेशर दिया हुआ है 15 पास्कल। यूनिट से आपको पता चलेगा आपको कौन सी चीज़ गिवन है। पास्कल इज़ द यूनिट फॉर प्रेशर एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स हमें दी है 36 न्यूटन। हेयर यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अब हमारे पास क्या होता है? प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने एरिया निकालना है, तो हम ऐसे एरिया के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A = F/P। F कितना है हमारे पास? 36 और P कितना है? 15। तो 36/15 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर एरिया। सो दीज आर दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और भी मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सेंड करूँगी इन स्नैप होमवर्क, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।